We are studying Canto 1, Chapter 2, Text 23. So let us begin. Sattvam Rajastama. Sattvam Rajastam iti prakate gunaste yukta para purusha ek iha sedate स्थिति यदे हरि विरिंची हरेति समझना श्रियं सी तत्र खलु सत्वातनोर्निर्णं श्रियो सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तेर्युक्ता परा पुरुष एक इह स्यादते स्थिति यदय हरि विरंची हरेति समझना श्रियं सि तत्र खलु सत्वतनोर्निर्णं स्यो सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तेर्युक्ता परा पुरुष एक इह सेदते स्थिति यदे हरि विरिंची हरेति स्मृष्णा श्रियं सि तत्र खलु सत्वतनोर्निर्णं सयो. Yes, whoever is there, please try to read the shloka. पढ़िए श्लोका को. सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणस्तेर्युक्ता परा पुरुष एक ईशस्य धाते स्थिति यदाय हरे विरिञ्चि हरेति संजना श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणं स्युः. Next. सत्वा राजा तमा इति प्रकृते गुणात् युक्ता परा पुरुषा एकादयाते सत्या आद्य हरिते संजना श्रेयमसि तत्र कालु सत्वा तन्दो नदनं स्युः. Okay, next. पूजा माता जी पढ़िए. सत्वं रजस्तमा इति प्रकृतेर्गुणातेर्युक्त प्रह पुरुष एक इहास्य धाते सृष्टिद अधे हरि विरिंचि हरिति समझना श्रेयमासि तत्र कालु सत्वतनोर्नर्णं स्युः. Okay, thank you. Word to word meaning. Anyone else is there? Word to word meaning. Sattvam, goodness. Rajaha, passion. Tamaha, the darkness of ignorance. Iti, thus. Prakriti, of the material nature. Gunaha, qualities. Tehe, by them. Yukta, associated with. Paraha, transcendental. Purusha, the personality. Ekaha, one. Iha asya, of this material world. Dhate, accepts. Sthiti Adya, for the matter of creation, maintenance and destruction, etc. Hari, Vishnu, the personality of Godhead. Virinchi, Brahma. Hara, Lord Shiva. Iti, thus. Samashna, different feature. Shriyamsi, ultimate benefit. Tatra, therein. Khalu, of course. Sattva, goodness. Tano, form. Nirnam, of the human being. Shiv, derived. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. The transcendental personality of Godhead is indirectly associated with three modes of material nature, namely passion, goodness, and ignorance. Just for the material world's creation, maintenance, and destruction, he accepts the three qualitative forms of Brahma, Vishnu, and Shiva. Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of quality of goodness. क्या बोला गया है? भगवान ऐसे तो मटेरियल नेचर के डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं होते हैं बिकॉज ही इज ट्रांसेंडेंटल टू मोड्स ऑफ नेचर. ठीक है, बट इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. कौन कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण. हाउ, किस पर्पस के लिए? दैट इज फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन. ठीक है, अब देखा जाए डिस्ट्रक्शन इज इन द इग्नोरेंस में ही आप किसी की तबाही कर सकते हो. ठीक है, फॉर मेंटेनेंस यू रिक्वायर अ गुडनेस एंड फॉर क्रिएशन you required a passion. So, और इन तीनों के लिए भगवान के गुण अवतार्स हैं जिनको कहा जाता है क्वालिटेटिव फॉर्म्स. दैट ही एक्सेप्ट्स द क्वालिटेटिव फॉर्म्स. व्हाट आर द गुण अवतार? ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा. और इन्होंने बोला कि जितने ऑफ दीज थ्री, इन तीन में से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जिनको कहा जाता है, इन तीनों में से
जो मनुष्य है वो किससे अल्टीमेट बेनिफिट पा सकता है? विष्णु से, क्योंकि वो किन में है? मोड ऑफ गुडनेस में है, सत्वगुण में। ठीक है, सो ब्रह्मा विष्णु शिवा, इनमें जो विष्णु है उनसे हम लोग ज्यादा बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं। सो दैट व्हाट स्टेटेड इन द ट्रांसलेशन। सो विल मूव टू द purport what Prabhupada is mentioning, that Lord Shri Krishna by his plenary parts should be rendered devotional service as explained above is confirmed by this statement. Lord Shri Krishna and all his plenary parts are Vishnu Tattva, or the Lord Shiva, Lordship of Godhead. From Shri Krishna, the next manifestation is Baladeva. From Baladeva is Sankarshana. From Sankarshana is Narayan, and from Narayan there is second Sankarshan. And from this Sankarshan, the Vishnu Purusha avatars, the Vishnu or the deity of quality of good in the material world is Purusha avatar is known as Shirodaksha Vishnu or Paramatma. Brahma is the deity of Rajas, Shiva of the ignorance. Let me read it out one more time. It says कि by his plenary part should be rendered devotional service. कि भगवान की मतलब कैसे हम डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं? There are plenary parts जिनको विष्णु तत्व कहा जाता है, जो भगवान के ही तत्व हैं। ब्रह्मा और शिवा विष्णु तत्व नहीं है, ठीक है? Don't consider them विष्णु तत्व. They are not विष्णु तत्व. विष्णु तत्व अब जैसे बलदेव हैं, वो उनकी डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, डायरेक्ट उन्हीं से ही आते हैं। ठीक है, फिर बलदेव के आगे अब पहला जो इनकारनेशन है भगवान से वो क्या है? बलदेव या बलराम जी। ठीक है, फ्रॉम कृष्णा डायरेक्ट वन इज बलदेव, so he is Vishnu Tattva. And from Baladev, then further from Baladev it comes Sankarshana, and from Sankarshana then it comes Narayana. तो लोग नारायण विष्णु बराबर समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले क्या है? कृष्ण से बलराम आते हैं, बलदेव जी, बलदेव जी से संकर्षण, संकर्षण से नारायण, और नारायण से सेकंड संकर्षण आते हैं, और वहां से फिर विष्णु पुरुष अवतार आते हैं। विष्णु जो क्षीरोदक्षाई फॉर्म है हमारी डीटी, जो हमारे सुपर सोल हमारे हृदय में है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। फिर आ जाता है उनके जो गुण अवतार हैं भगवान के, वो कौन है? ब्रह्मा और शिवा। ब्रह्मा तो भगवान के नेवल से ही प्रकट हुए हैं, और शिवा ब्रह्मा जी के फोरहेड से। ठीक है, तो ब्रह्मा जी किसकी? ही इज द इंचार्ज ऑफ मोड ऑफ पैशन। ठीक है, शिवा इज द इंचार्ज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। का मतलब ये नहीं ये खुद पैशन और इग्नोरेंस में, नो, they are also above that, but the thing is they are in charge of that guna. ठीक है, they are the three departmental heads of the three qualities of this material world. ठीक है, तो तीन क्वालिटीज हमारी रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, उनके तीन हेड कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, creation is made possible by Brahma's quality of passion and his endeavor. It is maintained by goodness of Vishnu, and when it required to be destroyed, Lord Shiva does it, the Tandav Nritya, and then destroys, annihilation happen. The materialist and the foolish human being worship Brahma and Shiva respectively. अब जो बेवकूफ लोग हैं किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मा और शिव की। किसकी करनी चाहिए? विष्णु की, क्योंकि विष्णु इज द मोड ऑफ गुडनेस, ही कैन गिव द अल्टीमेट बेनिफिट, यू नो, क्योंकि वो विष्णु तत्व है ना, बाकी गुण अवतार आ जाते हैं। लॉर्ड शिवा इज द शिवा तत्व, दैट इज सेपरेट, एंड ब्रह्मा जी ऑफ जीव तत्व, जो हमारा तत्व है। ठीक है, द टॉप मोस्ट वन इज विष्णु। अब जैसे हिरण्यकशिपु ही वेंट टू ब्रह्मा जी, you know, Ravana he went to Lord Shiva, but are they went to the right person? No, they wanted to be immortal. अगर ब्रह्मा और शिवा तो खुद भी immortal नहीं है, तो how they can give that benefit, you know? So it में लिखा है इन तीनों में से अगर you want the human being want the ultimate benefit, they should go to Vishnu. ठीक है, so it says the foolish and materialistic people go to Brahma and Shiva, but the pure transcendentalists worship the form of goodness. अब जो खुद रजो और तमोगुण में है वो कहाँ जा रहे हैं? उनके डिपार्टमेंटल हेड के पास जा रहे हैं। मगर दोस्त हु आर प्योर ट्रांसेंडेंटलिस्ट, बट इट डजंट लाइक कि शिवजी इग्नोरेंस में नहीं, ही इज एन आशुतोष, गेट प्लीज्ड वेरी इजीली, दैट्स व्हाई पीपल गो टू हिम. And it says the pure transcendentalist worship the form of goodness, that is Vishnu in his various forms, and we Vaishnavas are also Vishnu worshipper or Krishna worshipper. ठीक है, वैष्णव मतलब विष्णु. But the it says Vishnu is manifested by his millions and billions of integrated forms and separated form. The integrated forms are called Godhead, and the separated forms are called living entity or the Jivas. Both the Jivas and Godhead have their original spiritual forms. Jivas are sometimes subjected to the control of material energy, but the Vishnu forms are always controller of this energy. क्या बोला यहाँ पे कि भगवान जो विष्णु है वो भी उन्हीं से नहीं कर रहे हैं, मगर विष्णु is a controller and Jiva is controlled, you know. So when Vishnu, the personality of Godhead, appear in the material world, he comes to deliver the conditioned living being who are under the material energy. क्या बोला? When Vishnu appears in the material world,
He comes to deliver the conditioned living beings who are under the material energy. Such living beings appear in the material world with intention of being lords. Thus they become entrapped by the three modes of nature. हम लोग जब यहाँ भौतिक जगत में आते हैं, हमारी mentality क्या होती है? We want to be the enjoyer, you know. But Vishnu, he help us to understand, no, we are not the enjoyers. Being a super soul, he guides us from within. So it says further, as such, the living entities have to change their material covering for undergoing different terms of imprisonment. The prison house of the material world is created by Brahma under instruction of the personality of Godhead, and at the conclusion of a kalpa, the whole thing is destroyed by Shiva. But as far as the maintenance of the prison house is concerned, it is done by Vishnu, as such as the state prison house is maintained by the state. Now, I'll give you one example. If you want to build a house, whom you will be giving that responsibility? मिस्त्री को दोगे या चीफ इंजीनियर आर्किटेक्ट से आर्किटेक्चर बनवाओगे? ठीक है, देन यू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ मिस्त्री. ठीक है, मिस्त्री को दोगे, लेबर लगा के तो काम कर देगा. ठीक है, अब घर तोड़वाना हो तो खुद भी तोड़ सकते हो, आप हथौड़ा ले लो, तोड़ दो. ठीक है, मगर जो घर की मेंटेनेंस है, अब बनाना फिर भी चलो थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट्स इजी टास्क, इजंट इट? अब तोड़ना तो सबसे आसान है. कहते हैं ना, कपड़े धोना मुश्किल है, मगर कपड़ों को गंदा करना, जो धुले हुए हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा, रस्सी तोड़ दो, सारे कपड़े गंदे, है ना? बिल्कुल समय नहीं लगता. मगर उन कपड़ों को मेंटेन करने में टाइम लगेगा ना, इस्त्री करना, उतारना, सुखाना, प्रेस करना, फिर कईयों को ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है. जैसे सर्दियों के जो कोट्स वगैरह हैं, यू नीड टू ड्राई क्लीन देम, इजंट इट? यू कैन नॉट वॉश द हैंड वॉश, आप नहीं कर सकते उनको, या वॉशिंग मशीन में वॉशिंग चाहिए उनका. सो अब घर भी है, बनाना एक टाइम का काम है. बनाना बन गया घर, तोड़ना तो और भी आसान है, जल्दी से टूट जाएगा. तोड़ना दो सेंस में होता है, या तो रिश्तों में तोड़ दो, और या तो फिजिकली घर को ही तोड़ दो. ठीक है, तोड़ना बहुत आसान है. वैसे रिलेशनशिप्स में भी होता है, टू मेक अ रिलेशन इट माइट टेक लिटिल इन्वेस्टमेंट, बट वंस इज मेड इट्स फाइन. ठीक है, और रिश्ते को तोड़ना 1 सेकेंड भी नहीं लगता है. यू जस्ट ब्रिंग योर हैवी ईगो इन फ्रंट, you can break the relation. But to maintain the relation, it requires so many adjustment. You have to keep your ego down, you know. Maintenance time लगता है रिश्तों में बनाने में भी. And to maintain the home also it's require a lot. We have one home जो हमने पूरा रेंट पे दे रखा है, एक ही बार बनाया था, अब टूट भी सकता है कभी कभी, तो अब मेंटेन करना पड़ता है उसको. टाइमली टाइम मेंटेनेंस चाहिए, बिकॉज किराएदार रहते हैं, सो वी नीड अ मेंटेनेंस. सो मेंटेनेंस को थोड़ा ध्यान देना. अब मेंटेनेंस मालिक खुद करता है ना, किराएदार को तो नहीं देगा, ये किसी और को तो नहीं अपॉइंट करेगा. सो उसी तरीके से जब रिश्ते बनाने की बात आती है, तो हम खुद सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. आई वांट टू मेक दिस रिलेशन, आई डोंट वांट टू ब्रेक इट. सिमिलरली दिस क्रिएशन इज गिवन टू ब्रह्मा जी. द डिफरेंट डिपार्टमेंट वी गिव देम, चलो आप कर लो क्रिएशन. डिस्ट्रक्शन, यू कैरी ऑन विद द डिस्ट्रक्शन, बट टू मेंटेनेंस लॉर्ड हिमसेल्फ टुक द इन चार्ज, because maintenance is not that easy task. Because to maintain anything, either it's relations, either it's your home, it's your to maintain your clothes, anything, it takes a lot. क्योंकि मेंटेनेंस में बहुत इन्वेस्टमेंट है, so it takes a lot to maintain like proper system और प्रॉपर गवर्नमेंट. अगर आपको राज्य भी पूरा मतलब गवर्नमेंट सिस्टम मेंटेन करना, इट टेक्स अ लॉट. सो दैट्स व्हाई लॉर्ड हिमसेल्फ हैज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस. कभी कभी ऐसे ही बोला जाता है, लॉर्ड टेक्स द पोजीशन ऑफ ब्रह्मा आल्सो व्हेन देयर इज नो क्वालिफाइड ब्रह्मा, ही टेक द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा आल्सो. बट as I'm telling, in 3 forms, the main one is Vishnu, who is in the mode of goodness, who is taking charge of maintenance, because maintenance is not easy. In our bhakti also, if you see, coming not that easy I can say, but one can come to bhakti. प्रसाद खिला दो, कीर्तन में बुलाओ, भक्त संग में रखो, one can come to devotional life, you know. छोड़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि माया बगल में ही बैठी है, you know. Though you just leave the association of devotee, you commit some aparad, it will be very easy for you to leave the bhakti, you know. But मुश्किल पार्ट क्या आता है? मेंटेनेंस, कंसिस्टेंसी बनाए रखना भक्ति में, और एक मेंटेनेंस, एक एक ग्राफ होता है ना, एक बनाए रखना, मेंटेनेंस रखना. क्योंकि भक्ति में आ तो गए हैं, छोड़ना भी बहुत आसान है, क्योंकि माया तो आसपास है ही है, मगर उसको मेंटेन करना मुश्किल है ना, कि बनाए रखना, भक्ति में टिके रहना, यू नो. सो दैट टेक्स अ लॉट, यू नो. Coming very similarly in the cricket match also, to come to a crease, to come to the ground, it is easy. To get out, more easy. But to remain on the pitch, so scoring a century, it takes a lot. It requires your patience, it requires your skills,
It requires your all the things, teachings you have learned. So similarly, maintenance is required a lot. So that's why this department is taken care by Lord Himself. So anyone therefore who wishes to get out of this prison house of material existence, which is full of misery, like repetition of birth, death, disease, and old age, must please Lord Vishnu for such liberation. What he says, this material world is considered as a prison house, इसको दुर्ग कहा जाता है, जिसकी सुपरिटेंडेंट कौन है? दुर्गा. ठीक है, दुर्ग होता है फोर्ट. सो ये भी प्रिजन हाउस है. द प्रिजन हाउस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा, डिस्ट्रक्टेड बाय, मतलब हर ब्रह्मा जी का दिन और रात में डिस्ट्रक्शन, उनका दिन होता है तो डिस्ट्रक्शन, रात होती है डिस्ट्रक्शन हो जाता है. शिवा डज द डिस्ट्रक्शन, मगर मेंटेनेंस विष्णु खुद कर रहे हैं. ठीक है. सो इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन हाउस, यू नीड टू प्लीज विष्णु, यू नो. क्योंकि ब्रह्मा और शिवा का कोई काम नहीं, उनको सिर्फ बनाना है प्रिजन, तोड़ना है. मगर जो आपको सही में उधर रखेगा या निकालेगा वो विष्णु ही करेंगे, बिकॉज ही इज मेंटेनिंग द प्रिजन. ठीक है. प्रिजन में जितने भी रहने वाले हैं उनका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? विष्णु. सो अगर सुपरिटेंडेंसी अच्छी बनेगी तो आपको निकाल भी देंगे बाहर. सो वी नीड टू प्लीज विष्णु. ठीक है. And it says the chief beneficiary of all sacrifices is Vishnu. So the Sankirtan Yagya we are performing in this Kali Yuga, the chief beneficiary is Vishnu. For every Yagya, the chief beneficiary is Vishnu. And in the Kali Yuga, the only Yagya recommended is Sankirtan Yagya. And to uska bhi result kisko daan dena chahiye? Vishnu ko. So we should be worshipping Vishnu or pleasing him. Then it says, uh, Lord Vishnu is worshipped by devotional service only, and if anyone has to continue prison life in the material world, he may ask for relative facility for temporary relief from the different demigods like Shiva, Brahma, Indra, and Vishnu, Varuna. तो क्या लिखा है कि अगर आप इस दुर्ग से बाहर निकलना चाहते हो, इस संसार भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हो, so you have to take shelter of Vishnu, and the only means to take shelter of him by rendering devotional service. There is no other way. And if you just wanted to have some material desire to be fulfilled, or you're looking for some temporary things, then there are a list of demigods you can go to and you can fulfill your desires. एक नहीं तो दूसरे के पास चल जाओ, दूसरा नहीं तो तीसरे के पास. There is a list of demigods you can go to, you know. But if you want your ultimate benefit, then the only way is Haranameva Kevalam, that is the devotional service by chanting the holy names, and that too the offering is done to Vishnu. As Krishna says in Bhagavad Gita, Yat karosi, yad dashnasi, yajjuhosi dadadi, means whatever you do, offer to me, O son of Pritha. So you, whatever you do, whatever you give away, the charity you perform, the devotional service you do as an offering to me. So that's what Lord says. So we have to do that in a for the pleasure of Vishnu. Okay? So we have to do that for Vishnu only. So no demigod, however, can release the imprisoned living being from the conditioned life of material existence. अब हिरण्यकश्यप भी तो गए ना ब्रह्मा जी के पास कि छुड़ा दो मुझे, I want to become immortal. ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही नहीं हूँ, तुम्हें कहाँ से बनाऊँ? ब्रह्मा जी खुद he go through that birth and death. उनका भी मृत्यु होता है. Yeah, old age and disease is not there, but birth and death is there because he's a jiva tattva, you know. So he also go through that. So he himself is not free. How he can free you? He says when you are bound by the ropes, the only person can free you from your knots, the person who is free. अगर आपका मित्र है, आपके साथ बैठा है, वो भी बंधा हुआ है, आप भी बंधे हुए, तो छुड़ाएगा कौन एक दूसरे को? नहीं छुड़ा सकते ना. मगर आपका मित्र यदि खुला हुआ है, आप बंधे हुए हो, तो वो आपकी रस्सी को खोल सकता है. तो सिमिलरली ब्रह्मा शिवा, they cannot give you bhakti. You know, once I remember one story. There was a devotee of Lord Vishnu. He's a very pure devotee, very very pure, but into a poverty. वो गरीबी में था. So एक बार उसकी चादर की धोती, उसके पास एक ही धोती थी. विष्णु भक्ता doesn't require much. So उसकी धोती में छेद थे, तो he was trying to swing, मतलब उसकी धोती को सीने का प्रयास कर रहा था. So once Lord Shiva and Parvati Maya, Shiva, they were traveling around. So Mother Parvati saw this bhakta. She says, let us go to this devotee. He seems very sincere. Let us give him some benefits. So chalo na jaake benefit dete hain. Lord Shiva says, he is Vishnu devotee. He doesn't require our benefits, our boons. इसको नहीं जरूरत है. He is not after any material things because he is after bhakti. और वो हम लोग इसको नहीं दे सकते. Liberation we cannot give him. You know, we can only give the temporary things, and that doesn't, वो उसको चाहिए नहीं. She insisted, नहीं नहीं नहीं, हम आए हैं तो हम वरदान देंगे ही देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है. तो being an handpicked husband of his wife, of her wife, Lord Shiva says, पत्नियां हमेशा मरवाती हैं. So he says, okay, let us go.
I'm just making it. Lord Shiva didn't say like that. So Lord Shiva says, okay, let us go. What to do? So they went, and then Mother Parvati, like, this person is so busy with dhoti, and Lord Shiva and Mother Parvati was standing, and he was quite busy, like, with his dhoti, seeing them and all. So this, then Lord Shiva, Mother Parvati says, we are here. Then he looked up. Oh, then he just paid the obeisances. Then again he was busy with the dhoti to usko stitch karne mein. And then Mother Parvati, we have come to bestow some benedictions to you. So please ask from us whatever you want. He says, I don't need anything. So you may go proceed further and can give to someone else because I'm quite busy right now with my dhoti. So मुझे नहीं चाहिए कुछ भी. Then Mother Parvati says, we are here to give you benedictions and you can ask anything you'll want and we are ready to give you. So it's an opportunity for you. So just ask. First of all, he says, again, I'm telling you, I don't need anything. So I don't want anything. Mother in Parvati insisted him, no, you have to ask something. We have come here. So आपको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा. So he simply said, Acha, you wanted to give me, can you give me mukti? They says, no, no, we cannot give because that's the department of Vishnu. We cannot give that thing. Acha, then no fun. I don't need anything. So then, but still you have to ask something from us because we are here. So then he says, अच्छा ठीक है ये सुई में ना धागा नहीं डल रहा है तो ये धागा डाल के दोगे क्या मुझे धोती सीनी है. So then Mother Parvati was little offended. So then Lord Shiva actually Mother Parvati was so angry she was about to curse him. Then actually what had happened, वो जो भक्त था उसके अंगूठे से इतना तेज निकलता है, that's like, then Lord Shiva says he is a Vaishnava. So and Mother Parvati, you are committing a great offense by doing some offense towards this devotee because he's a Vishnu bhakta. Moreover, first of all, हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था and I don't want to get more consequences. So better you bestow some benedictions. अपने से जो वरदान कृपा देनी है दे दो और चलते बनो यहाँ से. Then Lord Shiva gave him lots of like blessings and all. Then they passed by. So I was just saying the point I wanted to make it out that the devotees, they don't want anything else, and the only thing that can make them happy, that is rendering devotional service to Vishnu, and the liberation, that is a department of Vishnu only he can give you, not any other demigod. So you need material benefit, you can approach, as Bhagavad Gita says in 720, or I think 716 is the verse. It says the less intelligent people are into the worship of demigods. No offenses to the demigods, they are as respectful. We should respect them because they are the servants of Krishna. So हमें उनको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए. मगर ये कि उनकी अलग से वर्शिप करने की जरूरत नहीं है. वट एवर यू नीड, just approach Lord Vishnu. He can give you anything you require, So that is there. So ultimate benefit is provided by Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead himself. And that is the way to have the found our things is by rendering devotional service onto the Vishnu. Okay. So this is it for today. So we are having few minutes. I would like to hear from all of you. So any of you having any comments or questions or anything, so just go ahead. Yes. Anyone having any comments or questions, so please go ahead. Yes, Asta. Plus, bache, please be little loud because I don't have the earphones in my ears. So you need to be little loud because laptop voice is not that high. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Yes, Madhaji. यस माताजी, आप जैसे डेमोगॉड वाला स्टोरी सुना रहे थे ना, तो ऐसे भगवद गीता में भी तो कहते हैं ना, भगवान 7 चैप्टर में 7.23 Yes. तो उसमें बोलते हैं ना कि यदि आप डेमोगॉड से वर्शिप भी करते हो, मतलब अनअलॉयडली करते हो, मतलब विदाउट मटेरियल डिजायर्स, यदि करते हो तो वो खुद ही आपको कृष्णा देंगे, लाइक Yes. If you are sincere in your heart, so then demigods will be helping you to become more Krishna conscious. But if you are not after Yes. anything, you're really up seeking some self. I remember there was a one devotee who was in Shirdi at that time, and he made a big line. उनके friend ने बोला चलो आगे से हम लोग पैसे देंगे तो जल्दी दर्शन कर सकते हैं. And he was quite loyal. He says no, I have come here to have darshan of Lord Ganpati, so I will be going in my line में लग के ही जाऊंगा. Though he was not there to ask anything from Lord Ganesha, anything material, वो अभी भक्त बने नहीं थे. So when he went to Lord Ganesha, when he finally got the darshan, so he simply prayed to him, कि please help me to become self-realized.
And the next moment only he found the devotees in Chowpatty and Mira Road, and he got connected to ISKCON. So this is how the demigod helps. Na? यस Yes. यस कल मैं ऐसे कल मैं मोगेला प्रभु जी का एक ऐसे लाइव सेशन देख रही थी, तो मोगेला प्रभु जी उनको भी बोला था कि उनको भी ऐसे क्वेश्चन था कि आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। Hmm. देन मोगेला प्रभु जी उनको बता रहे थे कि ओ वाओ दैट्स वंडरफुल, आई वाज आल्सो ग्रेट, मतलब नॉट ग्रेट, ही डिडंट से ग्रेट, आई वाज आल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, ही सेड यू नो। वो बता रहे थे कि वो इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा शिव जी को मानते थे जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे। एंड व्हेन मतलब वो ऐसे नहीं मानते थे कि लाइक मुझे ये दे दो वो दे दो, बट बिना बिना डिजायर्स के उन्होंने शिव जी की वर्शिप की। एंड फिर अमोगेला प्रभु जी बता रहे थे कि उन्हीं की वजह से आई गॉट द कृष्ण। Even for my case also, I was also a demigod means Lord Shiva's worshipper before being Krishna conscious. And हमारे घर के सामने ही Lord Shiva का मंदिर था. I remember that every morning when I got up, I used to go to get fresh water from there and the flowers. First, I offer the water to Lord Shiva and I pray to them कि you are a greatest Vaishnava. Please help me to become. ये तो भक्ति में आने के बाद की बात है. But he helped me to grow and more strengthen in my devotion. But obviously मैं externally कुछ करने की जरूरत नहीं है. But obviously, I was also not into the यस material stuffs. So Lord Shiva somewhere helped me to become a devotee. So that is a demigod help us if we are sincere. यस मधु जी तो कभी थैंक अगर यू। देविका देवगणों के टेम्पल में आप जाते भी हो तो बुरा मत मानो, बी रिस्पेक्टफुल टू देम एंड जस्ट प्रे टू देम कि एज यू पीपल आर सर्विंग वेरी नाइसली टू योर अच्छा मास्टर, मधु जी, लॉयल टू देम, प्लीज हेल्प me also to become a devotee, a nice servant of my master. Okay? अच्छा मधु जी एक क्वेश्चन था। Yes. ये अभी मतलब अभी तो काफी चेंज हो गया मेरे घर पे, लेकिन जैसे मतलब पहले थी ना, पहले से ही हमारी वो जो मतलब आते पते जगदीश आ रहे हैं, यू नो, वो जा रही है पूरी मटेरियल मटेरियल चीजों से ही रिलेटेड होती है, वो आरती नहीं Mm-hmm. होती है क्या, मतलब बहुत सारे Yeah. टाइप्स होते हैं वो होती थी मतलब पहले। तो अभी भी कभी कभी ओकेजनली हो जाती है, जैसे कोई स्पेशल फंक्शन आ गए ना, जैसे अब नवरात्रि आ गए तो वैसे आरती हो जाएगी, या फिर मेरे पापा रहते ना तो वो फ्राइडे को कभी आरती कर लेते लक्ष्मी वगैरह की। Mm-hmm. तो मैं ना उतना उनको पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि वो पता है मुझे पता है पूरे एक एक वर्ड भी उन्हीं के धन दो समृद्धि दो, तो मैं उतना अप्रिशिएट नहीं करती उनको। तो कभी तो फिर ऐसे फिर मम्मी बोलती कि तू ऐसा क्यों करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे करके। तो फिर मुझे लगता है कि अरे तो वो है ही, मतलब एक्चुअली है ही नहीं, वो तुम्हें पता नहीं किसने लिखे हैं, क्या लिखा है, किस मोटिव से Yeah, they लिखा are है। material prayers actually. Om Jai Jagdish Hare. It's यस, little bit और वो तो translated, खुद but ही not that वर्ड्स में much. लिखा है ना, तो वर्ड्स में लिखा है माता जी की रिद्धि सिद्धि देना एंड Yes, yes, yes. तो वो सब फिर तो मुझे ऐसा लगता है मैं उतना अप्रिशिएट नहीं करती, और मैं ना मतलब उतना पार्टिसिपेट भी नहीं करती। वो ठीक है वो कर रहे हैं तो करते हैं, तो फिर मैं साइलेंट हो जाती हूँ। मुझे वो एक्चुअली कभी कभी करती तो फिर मेरी मम्मी कहती तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा मम्मी वैसे देखो है, मतलब उतना तो नहीं बोलते मम्मी को, लेकिन मम्मी बोलते आप करो, मैं नहीं करूँगी करके। Or maybe externally you can be there and internally you're praying to Mother Lakshmi that हाँ मैं let वही us कहती become हूँ devotee. एक्चुअली, मैं एक्चुअली कहती हूँ यूर लक्ष्मी, यू आर वाइफ रुक्मिणी माता जी, Yes. एंड यू लव कृष्णा सो मच, एंड She प्लीज is into the हेल्प मी 9 टू limbs गिव में से कौन कृष्णा सी सेवा कर रही है लक्ष्मी माता जी? पाद सेवनम. पाद से। Yes. तो आई यूज्ड टू प्रे लाइक ना एवरी टाइम, बट मैं वो प्रेयर्स नहीं गाती हूँ, मैं खड़े रहती हूँ, लेकिन इंटरनली आई यूज्ड टू प्रे लाइक Yeah, लक्ष्मी। it's fine. It's fine. यस It's fine, Mother. Yeah. Anything else? ओके। फिर मैं भाई क्योंकि मेरी मम्मी कहती रहती है कि तू ऐसा नहीं कर ऐसा No, मत no, कर, it's okay. बट मैं Be there. बोले मैं आई तो मैं सुन रही हूँ आराम से. So I'm making prayer हाँ in my mind. That's fine. Okay. Yeah, हाँ anything else? नो माता जी। Okay, thank you माता जी. Yes, आप में से किसी को कुछ पूछना है? कोमल एंड पूजा माता जी. माता जी वो आपने बताया था ना कि बलदेव जी से कौन आया था, संकर्ष ना? संकर्षण. Yes. तो वो क्या होता है माता जी? संकर्षण वो भी कौन है? भगवान के ही अवतार हैं. जैसे अनिरुद्ध प्रद्युम्न ओके है. So they are the incarnations of Lord Vishnu. उन्हीं के ही अवतार हैं. ओके ओके। और उनके बाद संकर्षण भगवान संकर्षण हमारे बलराम जी को ही कहा जाता है एक तरह से. उन्हीं का दूसरा नाम भी है संकर्षण. ओके, अनंत और देव उनके जी. बाद लॉर्ड विष्णु आए ना, नारायणा. तो भगवान विष्णु नारायणा के बाद सेकेंड नारायण।
नारायणा के बाद में सेकंड संकर्षण और वहां से फिर विष्णु, क्षीरोदक्षिणी विष्णु। जी, और मतलब एक और कंफ्यूजन थी कि जैसे ये 3 मोड्स में आपने बताया कि तीनों भगवान है, तो लाइक जो तमोगुण कर रहे हैं वो उनको मतलब कैसे, मेरे को समझ नहीं आया कि क्या उनको शिव वो जी उनके उनको इंचार्ज देखेंगे? हैं, हेड हैं वहां के, जो जितने भी अब जो लॉर्ड शिवा है उनके जो एसोसिएट्स है वो कौन है? होप गॉब्लिन, घोस्ट, है ना, जो ये राक्षस जाति के लोग हैं, प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मीट मछली खाते हैं, वो उनके उपासक माने जाते हैं ना, या उनके फॉलोअर्स माने जाते हैं लॉर्ड शिवाजी के। तो वो काफी कंपैशनेटली उनका ध्यान रखते हैं, उनके उनको तो पास में जो रखते हैं। ऐसा भागवतम में एक बार मैंने पढ़ा था थर्ड कैंटो में, कि अब जैसे एक सही टाइम होता है जब गर्भदान संस्कार होता है, तो उस टाइम पे यूनियन के लिए जाना चाहिए मेल फीमेल को। पर यदि जैसे कलयुग है तो कोई भी कभी भी ऐसे यूनियन के लिए चला जाता है ना बिना टाइम के, बिना किसी के हिसाब जी, से, तो लॉर्ड शिवा ये जो होप गॉब्लिंग्स होते हैं ना, घोस्ट स्पिरिट्स, इनको क्या करते हैं, इनको उनके गर्भ में भेज देते हैं, इनको शरीर दे देते हैं, इस तरह से उन पर कृपा दिखाते हैं। मगर वो फिर राक्षस अ प्रवृत्ति के बच्चे पैदा होते हैं वैसे में, अच्छा। क्योंकि लॉर्ड शिवा अच्छा, ये अराउंड जो होते हैं ना उस टाइम पे। इट्स एन ऑफेंस टू हिम व्हेन वन इज इंडल्ज्ड इन दिस एक्टिविटी विदाउट प्रॉपर टाइम। हुँ, एक्चुअली जो इस तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका हेड होते हैं लॉर्ड शिवा, उनका ध्यान रखते हैं। अच्छा ये मेरे नहीं को कि उनको लगा शायद सपोर्ट कि कर रहे जो होते हैं, बट उनका ध्यान रखते ओके, आई थॉट कि जैसे मतलब जो भी तमोगुण में होता है तो उनको मतलब जो भी शिव जी की पूजा करता है वो तमोगुण ही हो जाता है, हैं। ऐसा ऐसा तो नहीं लिखा है है ना? भागवतम में, ये श्राप मिला था ना जो दक्ष प्रजापति का, वो हुआ था यज्ञ हुआ था, उसमें जब सेक्रीफाइस में जब गड़बड़ हुई थी तो बहुत सारे श्राप मिले थे। उसमें से एक श्राप ये भी है कि लॉर्ड शिव के जो भक्त होंगे, जो शुद्ध होगा वो तो वैष्णव बनेगा ही, जो शुद्ध नहीं होगा मतलब जनरली पीपल विल बी इनटू गेटिंग इनटू मोर मटेरियलिस्टिक, इंटॉक्सिकेशन वाले हो जाएंगे या वैसे, तो पीते तो है लोग भांग भी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, 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 जी। तो वही ठीक है। चीज़। मगर भगवान लॉर्ड शिवा खुद वैष्णव है, परम वैष्णव। हुँ। इसीलिए गांजा पीते हैं लोग यार। ठीक है पूजा माता जी। जी माताजी। और कुछ? नहीं माताजी। ठीक। आगे के जब हम कैंटोस पढ़ेंगे ना उसमें और डिटेल आएगा इन सब के बारे में। ठीक। जी, ठीक है। यस कोमल माता जी, माता जी आपको कुछ पूछना है? मा, जी मा, बोलो। यस आस्था। माता माता जी वो हिरण्याक्ष है ना, हिरण्यकशिपु की मदर, वो जो क्या क्या? कहते हैं, दीति अदिति और दीति, क्या अदिति, दीति हिरण्याक्ष है, हाँ दीति दीति, दीति दीति दीदी यही इसका मतलब ना, जब वो मतलब दीति उन्होंने दीति और कश्यप, यस, दैट्स ऑल, ये यस हिरण्याक्ष यस हिरण्यकशिपु बन यही के ये आएंगे। पढ़ा था मैंने, तो फिर मुझे याद आ या गया। इट इज देयर इन द थर्ड कैंटो। ये वहीं का ही है क्योंकि यस लॉर्ड शिव उनके दामाद लगते हैं। हाँ So he was around and it was like untimely they had the union, and because of that the like the bad spirit enter into the womb, and that's how the Hiranyakashipu born. Hiranyaksha and Hiranyakashipu born. So that यस yes. Yes. Anything else? और किसी का कुछ है? Okay then we'll be ending then. Let's. हाँ जी कोमल। माता जी एक चीज थी। कोमल माता जी बोलना है कुछ है? हाँ कोमल। नो माता जी, गलती से वीडियो ही ऑन हो गई, नहीं अच्छा। बोल। हाँ जी आस्था माता जी बोलो। हाँ माता जी कल मैं पढ़ रही थी भागवतम में, तो वही संकर्षण, अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, Yes. यस उनके बारे में उसमें बोला गया था कि जब अनिरुद्ध है तो जिनका दिमाग है These वो are called चतुर्व्यूह forms of Krishna. माइंड, यस यस, तो जिनका माइंड मतलब माइंड Mind is कंट्रोल नहीं होता, controlled by जिनका माइंड खराब होता है, तो उनको Aniruddha. अनिरुद्ध का वर्शिप करना चाहिए। Yes. हाँ माइंड और इंटेलिजेंस होगा तो फिर प्रद्युम्न। अच्छा हाँ, तो फिर वो मतलब ऐसा भी इधर मतलब ऐसे भी होता है, मतलब जी सब ने Yes, they all are controlling, but externally आपको ऐसा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. Just be engaged in हाँ devotional service. कैसे नाम है वो केवल है ना? Yeah. Okay. ये Anything else? Okay, then let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare कृष्ण Hare. कृष्ण Hare हरे Rama, Hare हरे Rama, हरे Rama राम Rama, Hare राम Hare. राम हरे 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 Hare कृष्ण Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare हरे Rama, Hare हरे Rama, राम Rama Rama, Hare राम Hare. राम Hare हरे हरे Krishna, Hare हरे Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, Hare Hare. कृष्ण Hare हरे Rama, Hare Rama, कृष्ण Rama हरे Rama, राम Hare राम Hare. हरे हरे Gantra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. All the Simple devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the night Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी।